Hello, good evening, everyone. I hope you all will be fit and fine. So, as we already have read about our poem, The Road Not Taken, so now this time we are going to start with the NCRT solutions, NCRT questions under the heading of Thinking About the Poem. So, I hope you will enjoy this lecture, you will enjoy this video. So, question number one. We do have the question by the poet: where does the traveler find himself and what problem does he face? Where does the traveler find himself? Traveler ने खुद को कहाँ पाया and what problem does he face? और उसके साथ क्या समस्या थी? The traveler finds himself at a point in the woods where two roads diverge. The traveler जो traveling कर रहा था who is standing at a point in a wood and he want to just go through with that road, but now a very peculiar situation came in front of him. And what was the situation? The situation was that he was standing at a point and he wants to go either on the left side or to the right side. In our life also, we do have so many choices, we do have so many options, but what is the way to do something that in each type of task we have to plan, we have to do such types of things which is very useful to reach us to the destination of our future. कि हमें अपने फ्यूचर पर पहुंचाने के लिए हमें किसी एक ही रास्ते को चूज करना होता है. We do have so many choices. Yes, this is correct. We do have so many choices. But the matter of point is that we have to select only one choice out of all these. So same situation with traveler also. He finds himself at a point in the woods. Woods means जंगल. ट्रेवलर ने खुद को एक ऐसे जंगल के एक उस पॉइंट पे पाया where two roads diverge, जहां पर two roads विभाजित हो रहे थे. And the problem, what problem does he face? The problem is that he cannot travel both the roads. The main problem is that कि जो ट्रेवलर है वो नहीं कर सकता ट्रेवल दोनों रोड्स पे नहीं कर सकता and thus he has to choose one between them. So इसीलिए उसको उन दो में से किसी एक रास्ते को चूज करना है. That is the exact problem that he faces, that he cannot travel both the roads and thus he has to choose only one between them. He had choices, he had two choices, but still the problem is same. Either he will be in the wood, and if we can speak about the on life of ours, अगर हम अपनी खुद की नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, सो इन दैट ऑल्सो वी डू हैव सो मेनी चॉइसेस कि काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. हर काम को करने की, हर चीज को करने की, हर एक्टिविटी को करने की, वी डू हैव very various ways. Now it's up to us that how can we handle these types of situations, how can we handle these types of circumstances. So ट्रैवलर के साथ भी वही सेम था. वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा था जहां पर वो देख रहा है कि उसको क्या करना है, किसी एक रास्ते से जाना है. अब उस एक रास्ते से उसको ट्रेवल करना कैसे है, उस एक रास्ते से उसको कैसे ट्रेवल करना है, वो एक ही रास्ते पे जा सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वो कोशिश कर रहा है
कि वो कुछ ऐसे सिचुएशन में आकर खड़ा हो गया है जहां पर उसको कोई रास्ता समझ में आ ही नहीं रहा है कि वो कहाँ जाए, लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू बाय, कि वो जो फ्रेजेस हैं जो अब हमें नीचे दिए गए हैं उनका मीनिंग एग्जैक्ट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अ येलो वुड। If we are talking about a yellow wood, so what does the poet, what does the traveler want to say about the yellow wood in this poem? So, what will be the answer? The phrase a yellow wood indicates a forest during the autumn season. यहाँ पर येलो वुड का मतलब है, मैंने चैप्टर में जब हमने रीडिंग की थी पोम की वहां भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे येलो का मतलब है पीला, और पीला का मतलब जब हमारे पेड़ों की जो पत्ती होते हैं ना वो ऑटम सीजन में आकर क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो जो हमारी हरियाली होती है ना, हमारी जो हरियाली है वो हरियाली कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अब पेड़ पौधे सूख गए तो उसके सूखने से क्या होगा, वो ट्रीज पे टिकते ही नहीं है, जब तक ग्रीन है तब तक उनका एग्जिस्टेंस रहता है ट्रीज पे। जैसे जैसे वो पीले पड़ने स्टार्ट हो गए उनका जो एग्जिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है। तो जब उनका एग्जिस्टेंस कम हो जाता है ना तो वो पेड़ों से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा जो कंप्लीट वुड है, हमारा जो कंप्लीट फॉरेस्ट है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इसीलिए उसको, उस जंगल को अ येलो वुड कहा गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, it was grassy and vented weir. What do you understand by this phrase? कि it was grassy, वो grassy है और vented weir है। So the phrase it was grassy and vented weir means that the road was full of grass, कि जो रोड है वो पूरी ग्रास से, पूरी घास से भरी हुई थी, as it has been less traveled, क्योंकि उसको यूज कम किया गया है, वो पूरी तरह से घास से भरी हुई थी। उसका रीजन क्योंकि उसको पूरी तरह से जो घास है उससे भरा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेंटेड वियर, इट वेंट इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट सो दैट इट कैन वियर आउट। यस, द फ्रेज वेंटेड वियर मीन्स इट वांटेड पीपल टू वॉक आउट, वो चाहता है रास्ता कि लोग उस पर चलें, सो दैट इट कैन वियर आउट, कि उसको देखकर भी कुछ लगे कि उसको भी किसी ने यूज किया हुआ है। द पासिंग देयर, what do you understand by this phrase, the passing where? The phrase the passing there refers to walking on that road। passing here का मतलब है walking on that road, उस रोड से वॉक करते हुए जाना, गुजर कर जाना, गुजरते हुए जाना। नेक्स्ट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी रास्ता, कोई भी कदम वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे जिससे पता चले कि किसी ने भी वहां पर पैर भी रखा है और उनके पैर रखने की वजह से कहीं भी कुछ ब्लैकनेस है। सो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक indicates that the fallen leaves had not been crushed under the feet of the travelers। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है ये दिखाना दैट द फॉलन लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड, कि जो पत्तियां गिरी हुई हैं हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स, कि वो क्रश नहीं हुई हैं अगर वो पैरों के नीचे आई हैं, क्योंकि सपोज अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और वहां कुछ गिरा हुआ है और अगर हम उसके ऊपर से चल के आए हैं
तो हमारी जो बॉडी के जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी से इंडिकेट्स हो जाते हैं। बट वहां पे उसने बोला कि किसी लीफ कोई भी लीफ देखने पे ऐसे लग ही नहीं रही थी कि किसी ने भी उसके ऊपर कोई पैर रखा हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट वन, how way leads on to way. So what do we understand by this? How way leads on to the way. Like in life also we do have so many choices. एक रास्ते में से दूसरा रास्ता अपने आप निकलता रहता है। वो बोलते हैं ना, जब रास्ते मालूम हो तो मंजिल का पता चल ही जाता है। इसका मतलब क्या है, सपोज हमें कहीं जाना है, तो मुझे अब किसी ने बताया कि आप लेफ्ट साइड चले जाओ, तो अगर मुझे उसने एक डायरेक्शन भी बता दी ना और मुझे अपनी उन रास्तों को बनाना आ गया, वो एक रास्ते में से दूसरा अपने आप निकलता जाता है। बट कंडीशन है शुरुआत करने की, स्टार्ट करने की। इफ वी आर नॉट गिविंग अस द कैपेबिलिटी टू इनिशिएट समथिंग, कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव, so we cannot do anything. So the only and only point is that once we have to take a initiative to do a very great types of things, and after that we can rock, we can make, we can grow our life. So the phrase how way leads on to the way means that one way leads to another, कि एक रास्ते से ही दूसरा रास्ता निकलता है. So once the poet had made a choice between the two roads, जब उसने चॉइस बनाई बिटवीन द टू रोड्स के बीच में, अगर उसको एक चूज करना था, he wonders if he will ever be able to come on the same divergence and choose the other one. He once the poet has made a choice between the two roads, कि एक बार तो उसको कोशिश करनी, वो कर चुका था, वो कर चुका है टू रोड्स में से किसी एक को चूज करने की। He wonders, वो बहुत हैरान है, that if he will ever be able to come, कि क्या वो वापस उस रास्ते पर आ पाएगा जहां से वो शुरू कर रहा है। एंड यूजुअली इट वाज वेरी इम्पॉसिबल, कि जब हम एक ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है उस ट्रैक को छोड़ के किसी और ट्रैक पे जाने की। ओके, बट everyone's having different type of lifestyle, life culture, so it's up to them. But according to the natural things, it will be possible. Like if one now how way leads on to way means that the one road leads to another. एक रास्ते में से दूसरा रास्ता अपने आप निकल ही जाता है। तो उसने कहा कि अगर मैंने शुरुआत कर ली तो मुझे तो मंजिल तक पहुंचने में देर ही नहीं लगेगी। अगर हमने पहली सीढ़ी पे पैर रख लिया, अगर मुझे पहली सीढ़ी पर चढ़ना आ गया, तो मैं धीरे धीरे करके लास्ट सीढ़ी तक भी पहुंच ही जाऊंगी। तो रास्ते का तो पता चल ही गया, ठीक है, तो मंजिलों को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। तो वही है कि रास्तों में से तो और रास्ते निकल जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि मैं इस जगह पर वापस आ ही ना पाऊं जहां से मैंने अपने आप को शुरू किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पॉइंट डिस्क्राइब्ड देम? क्या कोई डिफरेंस है इन बिटवीन दीज टू रोड्स जैसा पॉइंट ने एक्सप्लेन किया है? So first point in the question is in stanza 2 and 3. So according to stanza 2 and 3, it's necessary to give the answer that is there any difference between the two routes? Yes. Do you feel any difference? No. There is no difference between the two routes as the poet describes them in stanzas 2 and 3, as he says, the passing there had sworn them really about the same, and that equally lay in between in leaves, no step had trodden black. What does the poet wants to say? No, there is no difference between the two roads. In between these two roads, there would not be any type of difference. The poet describes them in stanza 2 and 3, as he says
The passing there had warned them really about the same, and that equally lay in leaves no step had trodden black. Yes. So no डिफरेंस नहीं है उनके बीच में कोई भी. टू और थ्री एज ही सेज, जैसे भी उन्होंने बताया कि दो या तीन जो भी थे वहां पर स्ट्रेंजर हैं उनमें, कि पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि उस चीज से पास आउट होकर जाना, उस चीज से नजदीक होकर जाना, हैड वॉर्न देम उनको तोड़ देते, एंड दैट इक्वली ले इन लीव्स, कि सब जगह पत्तियां बिल्कुल एक जैसी गिरी हुई हैं, बट जो रास्ता उसने चूज नहीं किया उसकी जो लीव्स थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वो बिल्कुल प्रॉपर सफाई वाली, जो है ना कंप्लीट, जो बोलते हैं ना सफाई देना किसी चीज की, कि कब क्या कैसे क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. सो यस दैट्स व्हाई. सो इक्वली लेन लीव्स, की जो पत्तियां गिरी हुई हैं जंगल में, वो हर किसी के जंगल में, हर किसी के पार्क में है जो गिरी हुई है. ठीक है. एंड इट मस्ट बी देयर इन येलो कलर, बिकॉज वी नो दैट इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द poem, in the last two lines In the last two lines of the poem, the poet indicates a difference between the two roads as he says that he took the road that was left less traveled by, and then has made a huge difference in his journey. What does he say? कि द पोएट जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है एक डिफरेंस को जो टू रोड्स के बीच में है. वो कह रहा है कि ही टुक द रोड, वो उस रोड को लेगा दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसको कम लोगों ने ट्रेवल किया है, एंड हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन हिज जर्नी. और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो वो अपनी लाइफ की जर्नी को, उस डिफरेंस को फील करेगा कि व्हाट वाज द एक्चुअली डिस्टेंस, व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम मीन? लास्ट की टू लाइन्स का मतलब क्या है? The last two lines of the poem was talking about taking a decision and accepting its consequences. कि अपने डिसीजन लो एंड एक्सेप्टिंग, और उसके रिजल्ट को, जो भी अच्छा हो या बुरा हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो. ठीक है. एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए. दैट इज वेरी मच मस्ट. ओके. नेक्स्ट इज, या, the poet chose the road that was less traveled by. We are very much able to take the decision. So it's my humble request to take your opinion, to take your address properly in such a way that it must be good for us. It should be good for us. सो द पोएट टॉक अबाउट टेकिंग अ डिसीजन. उन्होंने एक डिसीजन लेने के लिए कहा, एंड एक्सेप्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और ये भी कहा कि उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम होगा, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो. अच्छा है तो भी सीखेंगे, बुरा है तो भी सीखेंगे. द पोएट चूज द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय. तो पोएट ने वो कविता चूज की दोबारा से, जिसमें क्या था? यस, द चूज द रोड, उन्होंने वो रास्ता चूज किया जिसको बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था. विच इंडिकेट्स ही टुक अ डिसीजन दैट पीपल वुड नॉट टेक जनरली. तो ये दिखाता है कि ये ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो और नॉर्मली सभी ले लेते हैं. He says in the last line of the poem that his choice of taking the road less traveled by has made all the difference. So he says that. अब वो कह रहा है
कि he says that last line of the poem कि we do have choices in our life and by using these choices one can make the difference. So he does not seem to regret his choice. यहाँ पर कोई खेद की या किसी भी तरह की व्यक्तिगत आपकी भावनाओं को, आपके जज्बातों को छेड़ना नहीं था. So I hope you will understand this. Okay. So he does not seem to regret his choice. He says कि last line of the poem में the choice of taking the road less traveled by has made all the difference. एक लास्ट लाइन थी जहां पर फोर्स किया गया कि उनको वो क्वेश्चन जो है वो कराना ही कराना है. ओके, less traveled by. He says that the last line of the poem that was his choice of taking the less road traveled by, वो वाला रोड ही चूज किया है, उनकी चॉइस वही है जो लेस ट्रेवल्ड है. बाय हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से सारा डिफरेंस है, सारे परिवर्तन है. ही डज नॉट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी चॉइस पे दुखी है या खेद है उसको. उसको सिर्फ ये खेद है कि वो एक पॉइंट को, एक क्विज को, एक क्विज मीन्स जहां पर उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि विच टीम इज परफॉर्म्ड वेल एंड एंथुजियास्टिकली. सो द क्वेश्चन नंबर वन, question number one about the second part. Have you ever had to make a difficult choice? You will have difficult choice to make. How will you make the choice? चॉइस कैसे बनती है और क्या आप अपनी चॉइस का कुछ काम कर पाते हो? I will have to face challenges in the years to come and grow up. We will make choices on a daily basis. हम डेली बेसिस पे बहुत सारी चॉइसेस का सामना करते हैं. But I have not had to make a difficult choice till the date. But I have not had to make difficult choice. लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई बहुत मुश्किल समस्या आए. ओके, सो आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस in the years come as I grow up. मुझे इन चैलेंजेस का सामना करना होगा जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगी अपनी लाइफ में. Then I will have to make difficult choices. मुझे कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस बनानी है. आई विल हैव टू चूज माई प्रोफेशन, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा. आई विल हैव चूज, मुझे चुनना पड़ेगा अपना प्रोफेशन भी और वो एरिया भी जहाँ पर मेरा बहुत इंटरेस्ट है. आई थिंक व्हेन सच अ सिचुएशन विल कम आई विल नॉट जस्ट फॉलो द हेयर. जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो मैं अपने गले में भीड़ ना इकट्ठा करूं अपने आसपास. I will think it through the WhatsApp, the just like the poet. If required, I will take up in the unexploited paths. I think when such a situation will come, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें किसी एक रास्ते को चूज करना हो. In that case, I will just follow the herd. मैं किसी भी भीड़ का हिस्सा जो है वो नहीं बनूंगा या बनूंगी. आई विल थिंक इट थ्रू जस्ट लाइक द पोएट इफ रिक्वायर्ड. आई थिंक it throw out just because of ticket. So the question number two, after you made a choice, do you always think about that what might have been, or do you accept the reality? After you had made a choice, आपके चॉइस करने के बाद you always think about that what might have been, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और do you accept the reality, या आप acceptance रखते हो. So your answer will be there is no part of regretting and thinking about what better, what might have been. कि अब ये समय नहीं है खेद दिखाने का या सोचने का कि क्या हुआ है. Such thoughts will always keep in the hold of past
and if you never let us see the benefit of the choices we made. इसीलिए जो सब के सच थॉट्स थे, विचार थे, विल ऑलवेज कीप इन द बोल्ड ऑफ पास्ट, वो भूतकाल में हमेशा हमारे साथ रहता है, एंड नेवर लेट अस सी द बिहाइंड ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड, और वो कभी भी हमें वो बेनिफिट्स दिखाता ही नहीं है जो चॉइसेस की वजह से हमारे पास होते हैं। एक्सेप्टिंग रियलिटी इज द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशन, और किसी भी बात पे एक्सेप्टेंस रखना हमारी किसी भी सिचुएशन को काबू करने का एक सबसे आसान जो है वो क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक तरीका होता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, आई होप देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। So these are some questions. Okay, so we will meet in the next video. Okay, so thank you. Have a nice day.